अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपका दोस्त शनावला में एक बार फिर आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कोपेनहेगन कनाल टूर करवाया जाए। तो कनाल टूर का ये फ़ायदा होगा कि कोपेनहेगन की मोस्टली अट्रैक्शंस जो हैं ना हम एक ही गो में देख लेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं फिर इधर आया था सिटी में। तो अब कनाल टूर को शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। बल्कि ये टूर जो है वो टूर गाइड भी बताएगा, वो दोनों लैंग्वेजेस में बताएगा, एक इंग्लिश में भी और एक डेनिश में भी। तो कुछ बीच में हम भी आपको बताते रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस टूर को और आपको दिखाते हैं। ये हमारा पायलट बैठ गया, बोट स्टार्ट हो गई है, अभी चलाने लगा है। फिर देखते हैं कि हवा बहुत चल रही है, ठंड भी बहुत है इस वक्त तो। और हम बैठ भी बाहर गए हैं क्योंकि बाहर से ही अच्छा नज़र आना था, अंदर से तो कवर हो जाना था। वैसे तो अंदर उन्होंने शीशा लगाया हुआ है सारे, आप देख सकते हैं अंदर से भी, लेकिन जो बाहर बैठ के मज़ा आता है वो अंदर से तो नहीं आएगा। सूरज निकला है लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। Hello and welcome on board. My name is Helena. I'm going to be your guide on this tour through the canals and harbor of Copenhagen. And to our luck, we have Tobias as our captain, and he's going to get us safely through the tour. So as you might know, we have a high tide today. That's why we had to walk a little bit to find the boat. And that's also why there is some places on the tour that we cannot access because the bridges are too low. So we're going to stay more in the harbor than usually. So not so much in the canals, but we are gonna go in and just see the highlights where we can, of course. And it will still be an hour. And yeah, so on your right hand side you now see the Paper Island, one of our artificial islands here in the city. जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको ये ट्रिप करवा दूँ, बोट टूर जो है। आज मौसम जो है कदरे ठंड है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन धूप भी कभी कभी निकलती है जिसकी वजह से अच्छा फील होता है। अभी हम एक रेजिडेंशियल एरिया में हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे वो डिस्क्राइब नहीं कर रही कि कौन सी चीज़ क्या है। Lejlighederne her på venstre hånd, det er faktisk en gammel torpedohal, som er blevet omrestaureret. Så når vi kommer hen på den anden side af bygningen, så kan I se, hvor torpedobådene plejede at sejle ind. These apartments on your left-hand side is an old torpedo hole, which has been restored into these apartments. And when we get to this side of the building, you can see where the torpedo boats used to sail in. इतने खूबसूरत ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि यहाँ पर बोट पार्क करके और स्टेयर्स बनी हुई है वुडन कुछ, और उसके साथ आप ऊपर जो है जा सकते हैं अपने अपने अपार्टमेंट्स में। So these small houses on your left hand side is the old cannon boat sheets. And they were used after 1807 when the British stole the Danish fleet. So we used these small houses to hide away our boats so the British wouldn't take them. Today there's mostly offices. So on your right hand side you see the Freetown Christiania, which you may have heard of. They don't really like to follow all the same rules as we do, but it's a very interesting area to visit. Right now there's a lot of discussions in the media about if we should keep it or not. So the little funny looking building out here with the chimney
It's for recycling, but it's also a skiing loop where you can dry ski down the side of the building all year around. And they also have a lot of arrangements in the building, so it's really a building with many different functions. काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग है जिसमें सारे यूरोप से जो है सारा गार्बेज और सारा जो भी मटेरियल डिस्पोज ऑफ करना होता है वो यहाँ आता है, और ऑन द अदर साइड जो है इसके ऊपर स्कीइंग के लिए भी जगह बनाई हुई है। अब हम कंपैरेटिवली जो है थोड़ी खुली जगह पर आ गए हैं, तो काफ़ी तेज़ हवा हो गई है कि हम आपको दिखाने के लिए जो है बैठे भी बाहर की तरफ हुए हैं, तो ज़्यादा ठंड जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी क्रिस्टियानिया का कि क्रिस्टियान जो एक बहुत यूनिक सी जगह है और काफ़ी जो है वर्ल्ड वाइडली नोन है। वो पहले एक मिलिट्री की ऑक्यूपाइड जगह थी, और उसके बाद जो है उसको कह सकते हैं कुछ गैंग्स ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। वहाँ पर जो है ये लोग कोई भी गवर्नमेंट का रूल जो है, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं गवर्नमेंट का कोई भी रूल जो है वो फॉलो नहीं करते। उनके अपने रूल्स हैं, उनके जो घरों का इवन स्टाइल है वो डिफरेंट है, उनके स्कूल्स अलहदा हैं, उनके हॉस्पिटल्स अलहदा हैं, और विज़िट करने की भी वहाँ पर जो है इजाज़त नहीं है। उनकी अपनी एक बाउंड्री उन्होंने वॉल बनाई हुई है, और कैमरा तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अंदर गन्स के साथ लोग होते हैं। एक बार मुझे इत्तेफाक हुआ था जाने का एक ट्रिप के साथ, तो दैट वाज एंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत अजीब सी दुनिया है, और हर जगह हैश की स्मेल आ रही होती है, और अजीब व गरीब से लोग, पेंटेड फेसेस, अजीब व गरीब से ज्वेलरी, ड्रग सेलिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और कोई रूल नहीं फॉलो होता। सबसे बड़ी बात है, और अजीब सी बात है कि एक इस तरह का शहर जिसमें बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें एक ऐसी जगह जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये नेवी का सारा एरिया इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और पीछे नेवी की शिप्स खड़ी हैं और आप्तोस खड़ी हैं, सारा नेवी के कंट्रोल में है। जहाँ जहाँ येलो सारा है ये सारा नेवी के अंडर है। डेनमार्क नेवी, वो लिखा भी हुआ उन्होंने कि ये मिलिट्री की जगह है, तो इसके अंदर एंट्रेंस मना है। On your right hand side you see an area called Nyhavn. It's a military area, but today also museum property of some different naval ships. You see the submarine on your right hand side, it's called the Seal. It was our last submarine and it was lastly used in the Iraq War, when it was laying outside the area and keeping track on which different naval ships came to and left. The grey naval ship on your right hand side is the Brigade Pulleskab. It got known in 1982 because it accidentally fired a missile into a holiday area here in Denmark. Luckily nobody was home when it happened, so no one. मिसाइल चला दिया और कहते हैं गलती से चल गया। कहते हैं लकीली वो घर में कोई भी नहीं था उस जगह पे, तो उसका नाम रख दिया ऊप से मिसाइल, और वो बोट को इधर खड़ा कर दिया कि इसको नहीं दोबारा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी बहुत सर्दी है, ठंड इतनी है, हवा इतनी तेज चल रही है। Tilhører kan I se, at den hedder Sextus er opkaldt efter kong Christian VI. आ रहे हैं जी बीच Der er morgen ved समंदर में। solopgang, og hver aften ved solnedgang bliver det her for at afføre et kanonsalut til ære for det danske flag. On your right hand side you see the Battery Sixtus, named after King Christian VI, in honor of the Danish flag. ये साइड पे किंग का महल है,
और कैनन से फायर करते हैं डैनिश फ्लैग को सल्यूट करने के लिए हर रोज़ सुबह। Which is a really innovative way to use the harbor as space for all the people who want to live and be here. And in this area, some of the most expensive houseboats are placed. Så som vi nok har lagt mærke til, har vi så mange husbåde her i havn. Og det her område er faktisk nogle dyre. Most expensive ship houses are यहाँ के। Behind these houseboats on your right-hand side, you can also see containers, which are also used for living. So a little bit cheaper opportunity for the students वो दूसरी साइड पे कंटेनर हाउसेज हैं, वो हॉस्टल्स ही बनाए हुए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं क्योंकि ये ज़रा चीप है, इस वजह से स्टूडेंट्स को दिए होते हैं। Studieboliger. Så lidt billigere mulighed for de studerende for at bo. आज हम जो स्ट्रीट टूर है वो नहीं करेंगे क्योंकि पानी ऊपर होने की वजह से ब्रिजेस और पानी के दरमियान फासला कम हो गया, तो हम उसके अंदर से नहीं गुजर सकते, इसलिए आज वो स्ट्रीट टूर नहीं करेंगे, बस हार्बर पे ही सारा फैलाएंगे। ये जो अभी आप एरिया देख रहे हैं ये गर्मियों में भरा होता है, सारे स्विमिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिलती आपको बैठने की। बाकी कोपेनहेगन की मेन अट्रैक्शन आ रही है लिटिल मरमेड। og hun ender som skum på havets overflade. On your right hand side you have our biggest and maybe smallest attraction here in Copenhagen. ये biggest attraction है कोपेनहेगन की। She tells the story by Hans Christian Andersen about the Chun's daughter who falls in love with a prince on land and offers her advice in exchange for rights so she can be on land with her prince. But unlike इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। the real one doesn't end very happy. In fact, she never gets her prince who is in love with someone else. बहुत दुनिया She आती ends है up इधर as foam on the surface of the sea. इसको देखने के लिए। It's small, right? एक कैमरा मैं बेगम साहिबा को दे रहा हूँ, वो आपको इसकी स्टोरी थोड़ा सा बताते हैं कि इसकी स्टोरी असल में है क्या। स्टोरी इसकी मोहब्बत की स्टोरी है, सैड स्टोरी है इसकी, जो कि जितनी मुझे पता है वो यही है कि इसको किसी प्रिंस के साथ जो है मोहब्बत थी और वो रोज़ प्रिंस जो है वो यहाँ आता होता था और ये उसको निकल के बाहर देखती थी, ये कोई जल परी है, ठीक है, और ये समुद्र में रहती होती थी और वो प्रिंस जो है वो एक्चुअली किसी और के साथ मोहब्बत करता होता था और इसको जब ये बात पता चली तो ये बहुत सैड हुई और वो प्रिंस एक दिन ही निकल के बाहर आई उसको मिलने के लिए, वो प्रिंस आया ही नहीं और वो बस पत्थर पे, उसी पत्थर पे जिस पे इंतज़ार करने के लिए बैठी थी वहीं पे वो खुद भी साथ पत्थर की हो गई। तो ये इसकी सैड स्टोरी है। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ कितनी सच है कितनी झूठ है। यहाँ पे यही स्टोरी सुनाते हैं सारे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो अपनी ही रांझा और इसकी जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं, लेकिन हमने कोई उनका मुजस्मा नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और अगर आप इसको गूगल करें कोपेनहेगन के अट्रैक्शंस में तो ये वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है कोपेनहेगन की और सब लोग इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो कुछ जो ज़्यादा सेंटी किस्म के लोग हैं वो तो आगे इसको बुके शुके भी दे के जाते हैं कि दिल थोड़ा ना करो हम हैं।
In Danish, it's named after King Christian IV, who was the king at the time it was made in the beginning of the 1600s. And here he got his inspiration from Amsterdam. One of the most impressive things about this part of the city is that none of the great fires that destroyed so many parts of the rest of Copenhagen reached this area, and therefore some of the buildings dates all the way back to the time of Christian IV, about 400 years ago. Today it is one of the most popular areas in Copenhagen, but it was... I dag har vi jo vores Øresundsbro, der gør det super let at komme mellem de to lande, og derfor har de i stedet lavet det her om til en natklub. Here on your right hand side you see a little greenhouse which is known as the pencil case. And this is where the ferry used to sail between Denmark and Sweden. But today we have a bridge combining two countries, so now it's very easy to get to Sweden with train or with the car. So on your right hand side you see the National Bank, which is designed by the Danish architect Arne Jacobsen, who's mainly known for his designer chairs like the egg, the ant and the swan. Og foran jer kan I se Christiansborg Slot, hvor Folketinget og Højesteret holder til i Danmark. Det er det 5. eller 6. slot til at stå på pladsen, fordi de alle sammen enten er brændt ned eller blevet revet ned igennem tiden. Jeg har stået her siden 1928. So in front of you you see Christiansborg Castle, where the Supreme Court and Parliament is here in Denmark. It's the 5th or 6th castle to be on this spot because they all either burned down or was torn down during time. This one has been here since 1928. Og så har vi den gamle børs her foran os fra 1620'erne. Hvis I kigger på spiret, består det af 4 sammenklyngede draghaler med 3 kroner på toppen, som symboliserer Danmark, Norge og Sverige. In front of you you see the old stock exchange from the 1620s. If you look at the spire, it consists of 4 intertwined dragon tails with 3 crowns on the top, symbolizing Denmark, Norway and Sweden. जी सामने भी आपको जो नज़र आ रहा है वो है पार्लियामेंट है। पहले यहाँ पर रॉयल फैमिली जो है रहती होती थी, लेकिन इसको पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया है। और ये सामने जो आपको एक बहुत हाइप सी नज़र आ रही है, ये 3 ड्रैगन्स हैं जिनकी टेल्स जो हैं वो आपस में जो है वो लिपटी हुई हैं ऊपर की तरफ को, और वो एक यूनिटी का सिंबल जो है वो शो कर रही हैं, जैसे यूनिटी ऑफ 3 कंट्रीज़, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। और वो स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो ऑफिस है। इस साइड पर जो है ये नेशनल बैंक है, जो कि एक बहुत फेमस डिज़ाइनर, डेनिश डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है, और उसने बहुत ज़्यादा और भी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं जो कि बहुत फेमस हैं। और इसके अलावा फर्नीचर्स वगैरह भी वो डिज़ाइन करता है। एक बहुत एक्सपेंसिव स्टूल है जिसका नाम है एग स्टूल, वो भी उसी का डिज़ाइन है, और काफ़ी वो एक्सपेंसिव है। Her foran jer kan I se Udenrigsministeriet. In front of you you have the Foreign Ministry. दिस इज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस, और बहुत बड़ा डेनमार्क का जो है फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो है वो ऑफिस। जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। आज का टूर क्लोज हो गया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। और एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।